السلام علیکم دوستو۔ یونیورس میں زمین سے تقریباً 880 ملین دور ایک امیزنگ دنیا خوبصورتی سے گھوم رہی ہے جس نے صدیوں سے ایسٹرولوجسٹ کے دلوں اور دماغوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ زحل مصنوعی طور پر نظر آنے والے مسدس نما نمونوں کے رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ زحل کے نارتھ پول تک حیرت انگیز بارشیں خلا سے زمین پر گر رہی ہیں، اور ابھی حال ہی میں ہمارے سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ زحل کے رنگ میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ انٹرسٹنگلی، سائنسدان اس بارے میں بہت فکر مند ہیں کہ مستقبل بعید میں جو بھی زمین پر رہے گا وہ زحل کے شاندار رنگز کو نہیں دیکھ سکے گا۔ آخر ایسٹرولوجسٹ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہیں جو زحل کے رنگ کے ساتھ گردش کر رہی ہیں۔ ان دلکش اور عجیب و غریب تصورات کی کھوج لگانے کے لیے ناسا نے 1979 میں پائنیئر 11 خلائی جہاز زحل کی طرف بھیجا۔ جس نے زحل کی بہت قریبی تصاویر ناسا کو بھیجی۔ 2004 میں کیسنی مشن لانچ کیا گیا جس نے کامیابی کے ساتھ زحل کے رنگز کی دنیا کے حقیقی عجائبات کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے سائنٹسٹ زحل کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں وہ اپنے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا رہتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ابھی تک اس کی کمپلیکس نیچر کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ زحل نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے اور اس کا بنیادی حصہ سیارے کے ریڈیس کا تقریباً نصف ہے جس کا وزن زمین کے وزن سے 12 سے 20 گنا زیادہ ہے۔ انٹرسٹنگ فیکٹ از دیٹ اگر آپ کے پاس اسے رکھنے کے لیے کافی جگہ موجود ہو تو یہ پانی کے اوپر تیرتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈینسٹی تقریباً 0.687 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہے۔ اسی لیے زحل کو نظام شمسی کا سب سے کم ڈینس سیارہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے گرد چکر لگانے والے سیارے زیادہ تر پرفیکٹ سفیر کے طور پر دکھائی دیتے ہیں، لیکن زحل ان تمام سے الگ فلیٹ دکھائی دیتا ہے۔ زحل کا آربیٹل پیریڈ تقریباً 10.5 گھنٹے ہے اور یہ نمایاں طور پر تیزی سے گھوم رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ایکویٹر پر گیس کا بہت بڑا بلج بنتا ہے اور اس کے پول پر فلیٹ ہوتا ہے۔ زحل ایکویٹر پر تقریباً 75,000 میل قطر کا پیمانہ رکھتا ہے اور ایک پول سے دوسرے پول تک تقریباً 68,000 میل پھیلا ہوا ہے۔ زمین سے زحل کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر زرد اور گولڈن رنگ کے بینڈ نظر آتے ہیں۔ ان بینڈز کے بننے کی وجہ زحل کے اوپر چلنے والی تیز رفتار ہوائیں ہیں جن کی رفتار 1100 میل فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر آپ چھٹے سیارے کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو آپ کو ایک عجیب و غریب مسدس کا نمونہ نظر آئے گا جس کا ڈایامیٹر تقریباً 20,000 میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اپنے بے پناہ تناسب کے ساتھ متاثر کن مسدس ابتدائی طور پر ایک کمپلیکس طریقے سے تیار کیے گئے میگا سٹرکچر کا تاثر دے سکتا ہے جس سے اس کے سیکرٹ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ پیٹرن نیلے رنگ کے سائے سے سنہری رنگت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ کیسنی کی ہائی ریزولوشن تصاویر کو احتیاط سے مرتب کیا گیا تھا تاکہ ایک ایسی اینیمیشن تیار کی جا سکے جو اس رنگین رنگ کو ظاہر کرتی ہے۔ انٹرسٹنگلی، پہلی بار زحل کے شمالی پول پر واقع مسدس کے گھومتے ہوئے ورٹیکس کے اندر ایک بہت بڑا طوفان مشرق سے اچانک نمودار ہوتا ہے جو زمین کے سمندری طوفانوں کے مقابلے میں 50 گنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ سمندری طوفان چاروں طرف بکھرے ہوئے سرخی مائل ببر کو ایک ساتھ ملا کر گھومتا ہے۔ مسدس کے اندر ہیگزاگونل جیٹ سٹریم کی اینٹی کلاک وائز حرکت کے ساتھ ہیگزاگون کے اندر اور باہر کے مقابلے میں ذرات کی ساخت میں ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ چھوٹے گہرے ذرات وافر ہوتے ہیں جبکہ بڑے ذرات کم ہوتے ہیں۔ مسدس کے باہر کی صورتحال انٹرسٹنگلی اس کے الٹ ہوتی ہے۔ اس 6 رخی طوفان کا منبع اس کی لچک ہے۔ زمین پر سمندری طوفان صرف ایک ہفتے تک چلتے رہتے ہیں جبکہ اس مسدس میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ طوفان صدیوں تک چلتے رہتے ہیں۔
इस शक्ल को कंप्यूटर सिमुलेशन ने एक दिलचस्प वाकया से ज़ाहिर किया है जिसे गहरे थर्मल कन्वेक्शन के नाम से जाना जाता है। तब हरारत को फ्लूइड या गैस में नकलो हरकत के जरिए मुंतकिल किया जाता है तो ये फ़ज़ा में बहाव पैदा कर सकता है, जिसके नतीजे में बड़े कुतबी तूफानों की तश्कील होती है और ऊंचे एल्टीट्यूड पर मशरक़ की तरफ जेट पैटर्न बनता है। क्योंकि ये माहौलियाती खसूसियात सियारे के बलाई खित्तों के करीब मिल जाती है जो गैर मुतवक्के और मखसूस मुसद्दस शक्ल को जन्म देती है। ज़ोहल के शुमाली पोल पर मुशाहिदा किया गया कि मुसद्दस का वजूद इन तमाम तूफानों का नतीजा है। साइंसदानों को मालूम नहीं कि इस जैसा कोई दूसरा तूफान हमारी कायनात में कहीं और भी मौजूद है। जब वायेजर के डाटा को देखते हुए साइंसदानों ने सियारे के हलकों में कुछ अजीब और पुरअसरार स्पोक देखे, लेकिन फिर कैसनी मिशन के दौरान इससे भी अजनबी चीज दरियाफ्त हुई जिसके कोई आसार नहीं हैं। इन नामालूम वाक़यात के राज को मज़ीद रिकॉर्ड करते हुए करीब से मुशाहिदा करने से ये बात सामने आई कि अब ऊपर से देखा जाए तो स्पोक की शक्ल अमूमन स्याह होती है, ताहम जब नीचे से देखा जाए तो वो रोशन नजर आते हैं। रिसर्चर को भी अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि इसकी वजूहात क्या हैं। इंटरेस्टिंगली ज़ोहल के जो मौसम है वो 4 होते हैं जो बिल्कुल इसी तरह बदलते हैं जिस तरह हमारी ज़मीन के मौसम बदलते हैं, लेकिन ज़ोहल पर 4 मौसम इस तरह बदलते हैं कि हर मौसम में तकरीबन 7 साल ज़मीनी लगते हैं। स्पोक के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये गर्दो गुबार के ज़र्रात से निकलती हैं। वो हल्के जो बर्फीले टुकड़ों से अलग होते हैं और बाकी बर्फीले पत्थरों के ऊपर आज़ादाना तौर पर तैरते हैं, और ये ज़ोहल का मकानतीसी मैदान हो सकता है जो इसका सबब बनता है। जब शमसी हवा ज़ोहल के जीनियाती मैदान के साथ ताअम्मुल करती है तो ये बरकी तौर पर चार्ज शुदा माहौल पैदा करती है। ये माहौल उसके तर्ज़ी अमल को मुतासर कर सकता है। धूल के ज़र्रात को चार्ज करने से वो आर्जी तौर पर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और हल्कों के अंदर घने धब्बे बनाते हैं। हालांकि हमारे निज़ाम शमसी में दीगर गेंद में भी हल्के होते हैं, जैसे ईरानी हल्के। 7 हल्कों का नाम उनकी दरियाफ्त की तरतीब से रखा गया है जो ज़ोहल के ख़ते इस्तवा के साथ वाक़या है। हल्के सियारे के मरकज़ से तकरीबन 4300 मील के फासले पर शुरू होते हैं और एक हैरान कुन फासले तक बाहर की तरफ फैलते हैं, और अकेले ई रिंग तकरीबन 75,000 मील से 2,60,000 मील के फासले पर मुहित होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ई रिंग का तस्वर समझ में आए तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। ई रिंग को समझने के लिए एक सड़क का तस्वर करें जो पूरी लंबाई में फैली हुई है। अगर आप 100 मील फी घंटा की रफ्तार से मुसलसल गाड़ी चलाते हैं तो ज़ोहल का ई रिंग इसे सड़क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र करने में 2.5 माह से ज़्यादा का वक्त लगेगा। और अगर इसको मद्देनज़र रखें, कमज़ोर फोबी रिंग ये ज़ोहल के रदार से तकरीबन 100 से 270 गुना तक फैला हुआ है। जैसा कि सियारे की मखसूस शक्ल की तरह फोबी रिंग भी नाकाबिले यकीन हद तक फ्लैट है। तफसीली मुशाहदात से पता चलता है कि जबकि मखसूस इलाके में हल्के तकरीबन 6 मील की मुंडाई तक पहुँच सकती हैं, जैसा कि बुनियादी तौर पर पतले होते हैं। पतला जिसकी पैमाइश महज 32 फुट मोटाई में होती है। ज़ोहल की रिंग में ज़र्रात की अलग वसी साइज की रेंज होती है, जिसमें छोटे बर्फीले ज़र्रात होते हैं जो धूल से मिलते जुलते काफ़ी टुकड़ों तक होते हैं, जिनका साइज घरों जितना होता है, और यहाँ तक कि कुछ गैर मामूली ज़र्रात भी होते हैं जो पहाड़ों की वसत तक पहुँच जाते हैं। लेकिन तकरीबन 4 सदियों पहले जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन को ज़ोहल की तरफ मोड़ा तो उसने गैस के बड़े सियारे को कान या हैंडल के तौर पर बयान किया, जो दर हकीकत वो लंबे लंबे बल्जस थे जिन्हें अब हम पहचान सकते हैं। और अपनी मामूली दूरबीन से गैलीलियो शानदार हल्कों की पेचीदा तफसीलात को ना समझा। आज हमें लगता है कि हम छठे सियारे के ताकतवर हल्कों के बारे में जानने के लिए तकरीबन सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये भी हमारे तवक्कात को मुतज़लज़ल रखता है। ज़ोहल के हल्कों के अंदर मौजूद ज़र्रात जो तकरीबन पानी की बर्फ़ है, 2 मुखालफ कुव्वतों के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन में मसरूफ़ हैं।
ज़ोहल की कश्य शकल इन्हें सियारे की तरफ खींचती है और उनकी ऑर्बिटल रफ्तार इतनी खला में बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। साइंसदान तवील अरसे से सोच रहे हैं कि आया सियारा अपने हल्कों के साथ ही इर्तिका पजीर हुआ है या फिर हल्के बाद में बने हैं। ताज़ा तरीन नताइज से पता चलता है कि ज़ोहल की गैस दियो की उम्र 90 से ज़ायद जिंदगी तक ये हल्के मौजूद नहीं थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे और कब पैदा हुए। एक इम्कान ये है कि हल्के बाद में सियारे के वजूद में पैदा हुए। ज़ोहल के गिर्द गर्द करने वाले बर्फीले चांद एक दूसरे से टकरा गए। ये तसादम सियारों या दो कैमियतों के गुजरने की कश्य शकल के असर की वजह से हुआ हो सकता है। 2016 की एक तहकीक में एक दिलचस्प ख्याल पेश किया गया था कि हल्के बोने सियारों की बाकियात हो सकते हैं। इस थ्योरी की हकीकत से पता चलता है कि ये बोने सियारे जो माजी बाइद में ख़त्म हो चुके हैं हल्कों के तौर पर मौजूद हैं, या फिर ये सिर्फ एक बड़ा चांद हो सकता है जो माजी में ज़ोहल के सबसे बड़े सैटेलाइट टाइटन से टकरा गया था। साइंसदानों ने क्रेसैलिस नामी एक मुमकिन चांद की निशानदही की है जो ज़ोहल के हल्कों से पहले मौजूद था। कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए पता चला है कि क्रेसैलिस ज़ोहल का तीसरा बड़ा चांद यूपिटर के साइज के बराबर था और नेपच्यून की कश्य शकल के ताअम्मुल की वजह से हल्के के सियारे का महवर नेपच्यून के मदार के साथ हम आहंगी में झुकने और डूबने का सबब बनता है, जिसके नतीजे में हम ज़ोहल को बदलते हुए जावियों की तरफ ले जाते हैं, जिस पर हम ज़ोहल के हल्के टाइटन की ग्रेविटी को देखते हैं। टाइटन सियारा अपनी कश्य शकल का इस्तेमाल करता है और तेजी से दूर हो जाता है, जबकि हमारा चांद भी जमीन से दूर हो जाता है। लेकिन तकरीबन 100 से 200 मिलियन साल पहले टाइटन और क्रेसैलिस एक धीमी रफ्तार से एक गूंज में दाखिल हुए। जैसे ही टाइटन बाहर की तरफ हिजरत कर रहे थे, कश्य शकल की कुव्वतों ने क्रेसैलिस के मदार को गैर मुस्तहकम कर दिया, जिसकी वजह से क्रेसैलिस ज़ोहल के करीब पहुंचे और उसकी कश्य शकल से फट गया। तकरीबन 99 क्रेसैलिस गैस दियो ने जज़ब कर लिया था और बकिया 1% इस शानदार हल्के के निज़ाम के पीछे रह गया था जिसे आज हम देख रहे हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक ज़ोहल की उम्र तकरीबन 100 से 400 मिलियन साल है, लेकिन इनका वजूद जल्द ही ख़त्म हो सकता है। एक हकीकी आसमानी मौजज़ा ज़ोहल के मैजेस्टिक हल्कों को पिघलने का सबब बनता है और मज़ीद 100 या उससे ज़्यादा मिलियन सालों में वो सूरज की ताबकारी या खलाई चट्टान की वजह से पैदा होने वाले प्लाज्मा के बादलों के ज़ेरे असर गायब हो जाएंगे। ज़ोहल के हल्के बाद औक़ात बरक़ी तौर पर चार्ज हो जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो धूल के ज़र्रात ज़ोहल के मकनातीसी मैदान से जुड़ जाते हैं, जो फिर इन्हें गैस दियो के ऊपरी माहौल की तरफ फेंकते हैं, क्योंकि गैस दियो सूरज के गिर्द सियारे का चक्कर लगाता है और इसके हल्के झुक जाते हैं, जिससे इसकी मकदार बदल जाती है। ताबकारी की पैदावार उसकी अंदरूनी रिंग की तहों पर पड़ती है और बर्फीली रंग की बारिश की शिद्दत को मुतासर करती है। फ्रेंड्स, नासा का कहना है कि छठे सियारे का हल्कों का निज़ाम इंतहाई तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, जिसका अंदाज़ा लगाया गया है कि हर 30 मिनट में ये ओलंपिक स्विमिंग पूल के पानी का हुजम खो देता है। और अभी हाल ही में 4 दहाइयों के बाद की तहकीक करने वाले साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि ज़ोहल पर गिरने वाली रंग की बारिश का सियारे की फ़ज़ा पर गुज़रते सेकंड पर असर पड़ता है और इससे पहले शमसी अल्ट्रावायलेट शुआओं से बमबारी करने वाले 6000 पाउंड तक के बर्फीले ज़र्रात खूबसूरती से उतरते हैं। ज़र्रात की जमा तवानाई दूसरे ज़र्रात के साथ तसादम के जरिए इर्द गिर्द के माहौल को मुंतकिल होती है। ये तवानाई बख्श तबादला ज़ोहल के माहौल को गर्म करने में हिस्सा डालता है और कुर्रा अर्ज़ के शुमाली और जनूबी कुर्रा में चमकदार बैंडों का सबब बन सकता है। लेकिन ये वाहिद बारिश नहीं है जो सियारे पर होती है। ज़ोहल का चांद अपने ज़ेरे ज़मीन समंदर से पानी की बर्फ की जेट्स को खुला में छोड़ता है। इनमें से कुछ छोटे ज़र्रात ज़ोहल के मकनातीसी मैदान और कश्य शकल की कुव्वतों से मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से वो गैस दियो के माहौल पर बरसते हैं। इस रुझान को चांद की बारिश का नाम से जाना जाता है।
ہمارے نظام شمسی میں ماہ پرائز زمین زندگی کے وجود کے لیے اور بھی زیادہ امیدوار دریافت کریں گے۔ اس لیے خلائی تحقیق میں تازہ ترین کامیابیوں کے بارے میں آپ اپڈیٹ ہونے کے لیے یہاں موجود رہیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔